Since a parallel plate air capacitor is given to you, has a capacitance of 3 into 10 to the power of minus 9 farad. The capacitance of a capacitor is given to you 3 into 10 to the power of minus 9 farad, students. A slab of dielectric has been introduced. A slab of dielectric constant K is equal to 3. Thickness is given to you as 3 centimeter. Is completely filling the space. It completely fills the space. So it's completely fills the space between the plates of the capacitor. Okay. The potential between the plates is given to you 400. Potential difference is 400 volt, which remains constant. A constant potential difference is applied to it, students. Question asked, what is the change in energy of capacitor if the slab is removed? Change in energy of capacitor if slab is removed. Students, is the question clear to all of you? I repeat, a parallel plate air capacitor. This is parallel plate air capacitor. C0, if I happen to consider, then it will be air capacitor. Okay, a parallel plate air capacitor of capacitance 3 × 10⁻⁹ farad. A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 centimeter completely fills. So this completely fills the space between plates. The potential difference is given to you constant, students. You have to find a change in energy of the capacitor. Students, is the question clear with all of you all? Students, is the question clear? Change in energy of capacity if slab is removed. Yes, Harsh, come on. The question clear, students? Is the question clear to all? Yes, sir. I want change. No, it's incorrect.
change in energy of capacitor if the slab is removed. Yes, anybody? Deep, can you unmute? Yes, sir. Can you tell me if I introduce a dielectric, will the capacitance of the condenser will increase or decrease? अगर मैं dielectric introduce करता हूं तो क्या capacitance बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा क्यों? सर डिनोमिनेटर कम होगा. That means that the denominator कम हुआ in the sense that means your relation is what? C for a medium is equal to C0. पता था ना? Capacitance for medium with respect to C0 क्या आ रहा था? आया ना? ये रिलेशन बताया कि नहीं बताया? हाँ सर. तो बस तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? Find out the energy stored in the first case with respect to, suppose अगर मैंने C for medium लिया है तो half C V square, ये मीडियम के हिसाब से होगा एनर्जी स्टोर. और फिर अगर सपोज मैंने इसको निकाल दिया तो अभी क्या होगा? एयर कैपेसिटर ही होगा. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मुझे क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में का डिफरेंस. ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर. Friends, you have to find out simply change in energy. Is a potential difference constant? Deep, getting it? Yes, sir. क्या किया था तूने? 1.6 क्यों आया तेरा आंसर? Are you doing this now? Yes. Okay, get the answer. Let's see what's answer getting. Students, is this clear to all of you all? Rest of the Yes, students. sir, clear. Where is Norman today? Norman is absent today? Yes. Today Norman is absent. Please tell me what's your answer. Yes, anybody? Sir, is it 1.44 into 10 to the power minus 5? From 1.44, my dear, it will be 48. मुझे ये बताओ students, मुझे ये बताओ students, does this thickness matter? Huh, students? Does this thickness matter? No, sir. Thickness will not matter. तो तुम इतना क्यों टेंशन है? मुझे पता नहीं चलो what are you doing? C for a medium अगर मैंने ले लिया है तो K for a medium कितना दिया थी? और C0 कितना दिया है? Air capacitance 3 into 10 to the power of 9. तो ये कितना होगा? 9 into 10 to the power of minus 9. Now you find out both the values ना.
C is equal to half V square, तुम बाहर निकाल दो. Agreed. Difference मुझे चाहिए ना. Let me go for difference only. Agreed. So what exactly C for a medium minus C0 we consider. That is equal to what? Half into 400 the whole square. What is C for a medium we consider is 3 times. So 3 minus C0 will be 2C0. 2 and 2 will get cancelled. So can I say this will be 4, that is 4 square is 16 into 10 raised to 4 into 3 into 10 raised to minus 9. क्या answer है? 63 to 48. First change in energy. Did you get it? 48. Yes, sir. Now this answer will be ensured. ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हें सी फॉर मीडियम एंड माइंड स्टूडेंट्स, ये मैंने बता दिया था. और अगर तुम क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि मैंने अगर एयर कैपेसिटर में लेता हूं और फिर मेरे को डाइलेक्ट्रिक डाल दिया स्टूडेंट्स, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज सी का फॉर्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है. तो अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो सी का वैल्यू भी बढ़ेगा. तो पहले एयर था, वी कैन कंसीडर देन मीडियम. अब इसको मैंने निकाल दिया है, या पहले मैं मीडियम पकड़ के चलो, फिर मैंने निकाल दिया, तो व्हाट एग्जैक्टली द कैपेसिटेंस. So that we can get it, relation between medium and air. Then energy in both the cases we have to find out. Students, clear hua? Yes. Okay, shall I erase this? Yes. Next question. Okay, students, so please pay attention to this. A slab of dielectric constant, students, a slab of dielectric constant K has the same area as the plate, okay, and has a thickness. So area is constant of what? Dielectric. That means it's constant and equal to area of plate of the capacitor. Okay, this is for dielectric students. Okay. And the thickness given to you is what? It's 3/4 times small d. Where d is a separation between the plates of the capacitor, students. Okay. पूछा है change in capacitance, students. Change in capacitance when the slab is inserted between the plates. I want change in capacitance when slab is inserted in the plates. Students, is the question clear to all of you all? Yes, sir. Options I'll give it to you in terms of it, students. C is equal to A epsilon naught D. C is equal to A epsilon naught by D. C is equal to A epsilon naught by D. C is equal to A epsilon naught by D. Option A, option B, option C, option B. Bracket has different terms over here. Students, it will be K plus 3 upon 4K, 2K upon K plus 3, 4K upon K plus 3, K plus 3 upon 2K. Students, क्या question clear हुआ?
It's a very simple question. Students. For answer, why so much of time? Students, it seems that you're getting worried about change, na? Change के हिसाब से आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या, students? Is it? हाँ सर, मैच नहीं हुई। हाँ, that is what I feel it. Students, capacitance के लिए get it? Capacitance when the slab is inserted. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सिर्फ अगर मैं ये पूछूं तो सर सी। सी आएगा. Absolutely correct. Absolutely correct. और फिर अगर चेंज पूछूंगा तो इनिशियली कितना है? सर 1 माइनस ब्रैकेट हो जाएगा। ये पहला था, है ना, फर्स्ट केस में. हाँ सर। ये C2 सेकंड केस में होगा. तो अगर मैं चेंज पूछूंगा तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल. तो आई कैन टेक इट एज C2 माइनस C1. इस हिसाब से मैं देखूंगा. तो इफ इन केस इफ आई हैपन टू कंसीडर दिस केस, व्हाट एग्जैक्टली टेक इट? एप्सिलॉन नॉट A by D मैच नहीं होगा स्टूडेंट्स, आंसर मैच नहीं होगा. ये जो आंसर है ना, सी का आंसर, इट्स ओनली फॉर दिस. लेकिन अगर चेंज पूछा तो हाउ डू यू कंसीडर स्टूडेंट्स? कैसे करोगे इसको? तो दिस इज 4k upon k plus 3 minus k. Is this clear, students? Is this clear, students? Change. सर that k should be 1, no, for air. Pardon? Sir, for air it should be 1, no, k. Yeah, that is what I'm now going to put forward. Change is this. Okay. Now we can consider the first case here. K is 1. तो epsilon नॉट A by D आएगा. तो यहाँ पे तुम k is equal to 1 डाल दो. तो now अगर मैं सॉल्व कर दो epsilon नॉट A by D, तो it will be 4k minus k minus 3 upon k plus 3. This will be 3k. So epsilon नॉट A D into bracket 3 minus 3 आएगा ना स्टूडेंट्स, सॉरी 3k minus 3 आएगा. This is 3k minus 3. Option doesn't match this. Agree, students? Yes sir. यानी ये क्वेश्चन सिंपली द कैपेसिटेंस के लिए स्टूडेंट्स, नॉट चेंज. लेकिन चेंज पूछा तो स्टूडेंट्स आंसर विल वेरी. And Harsh, did you get it? Answer A नहीं है, C है. Is that clear? Harsh, is it clear? Sir, can you explain again? देखा, मैंने चेंज नहीं पूछा, मैंने कैपेसिटेंस पूछा. थोड़ा सा कैपेसिटेंस मुझे बताओ, C कैसे आएगा? What is the distance between the two plates? Harsh बताओ, what is the distance between the two D. plates? D है. और मैंने जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है? स्लैब डालना.
What is the thickness of the slab? 3/4D. यानी उसका मतलब एरिया सेम है. अगर 3/4 of this are filled up with dielectric, तो बाकी D/4 क्या था? एयर था कि नहीं था? हाँ सर. तो अभी पता चला कि नहीं? C is equal to what? K epsilon naught, so epsilon naught A D/4 upon K for air plus 3D/4 upon K for medium. क्या ये क्लियर हुआ? Yes sir. बस अब इसको सॉल्व करके लिखे तो ऑप्शन है सी. यानी C is equal to what? Epsilon naught A upon D/4 हो जाएगा. K for air is 1 plus 3D/4 for K for a medium. Solving it, see what exactly I'm getting it. C is equal to epsilon naught A. अगर मैं LCM यहाँ पे 4K लेता हूँ, स्टूडेंट्स 4K लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? I'll consider in terms of DK plus 3D. K plus D. तो epsilon naught A into 4K upon D बार आ गया K plus 3. Is this clear now? Yes sir. Okay, क्या मैं erase कर सकता हूँ इसको? 1 minute. Okay. Please, Braj, Prashant, Tarek, Tirth, Shreyas, Riya, getting it? Rishabh. Josh, are you getting it, Josh? Josh, are you there? So this is what it is. When I ask, don't reply at all. Okay, can I erase it, students? Yes sir. Okay. Okay, students. I'll give the option, students. Option A, minus Q, capital Q upon 6 pi epsilon 0 L. Option B, small q, capital Q upon 2 pi epsilon 0 L. Option C, small q, capital Q upon 6 pi epsilon 0 L. And option D, minus q, capital Q upon 4 pi epsilon 0. Okay, now students, please pay attention for this question. Okay, students, so please pay attention. Students, a charge plus Q and minus Q. A charge plus Q, okay, and minus Q are placed, students, at points A and B respectively. Plus Q and minus Q are placed at point A and B respectively, which are at a distance 12 apart, students. C is a point which is midway.
between A and B, and CB is equal to L, we consider therefore. Students, the question asks is answers now. The work done in moving a charge, work done to move charge plus Q along the semicircle. Charge plus Q. Charge plus Q along the semicircle. Along the semicircle C, R, and D. Along this. Please, work done in order to move एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू. स्टूडेंट्स, प्लस क्यू एक दूसरा चार्ज है. मुझे चार्ज को मूव करना है all the way along from C to R and R to D. So I repeat, the work done in order to move a charge of plus Q along the semicircle CRD is, options are given to you. Can your question clear, friends? I repeat, two charges plus Q and minus Q are placed at point A and point B. Okay, distance of AB is 12. C is the midpoint of AB. You have to find out the work done to move a charge of plus capital Q along the semicircular path CRD. Options are given to you. क्या ये question clear है students आपको? Yes. Get the answer. Yes, come on. Harsh. Harshita, are you there, Harshita? Harshita, are you there? She's not there. Harshita, I can't hear you. Yes, sir, I'm there. Are you there? Solve कर रहे हो ना question? Yes, sir, I'm trying. Okay, fine. Work done to move the charge plus Q along the semicircle CRD. No, it's not correct. Deep, गलत जा रहा है. Harsh, you are also getting wrong.
Shall I solve it, students? Solve करूं? Yes. sir. क्यों? Why do you surrender? मुझे ये पता नहीं चल रहा है यार, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? We have done questions on to work done and potential students. अभी देखो, work done to move a charge plus Q along the semicircle, इसका मतलब work done to move a charge from where to where? C to D. किसको? Work done to move a charge plus Q from C to D. उसका मतलब क्या हुआ? So work done is equal to what? V is equal to W upon Q, so W is equal to V into, and the work done is a difference in potential. Difference in potential, and difference in potential का मतलब क्या हुआ? You are trying to move from C to D. तो ये हुआ initial, ये हुआ final. तो कहना है potential at point D minus potential at point C. क्या था? क्या था? तो तुम्हें वर्क डन पूछा है ना, बस ना अभी क्या करो, पोटेंशियल एट पॉइंट डी फाइंड आउट करो माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी फाइंड आउट करो, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, वो तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा। दीप क्या किया तुमने? यही किया? हाँ, तो मुझे बताओ हाँ, स्टूडेंट्स, हाँ तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी क्या करोगे? इस पोटेंशियल स्केलर और वेक्टर? हाँ, इस पोटेंशियल स्केलर और वेक्टर? Scalar. तो पोटेंशियल अगर मैंने पूछा, ध्यान से लेना, पोटेंशियल एट पॉइंट डी पूछूंगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी किसके हिसाब से? पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू अ चार्ज एट पॉइंट बी। कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है सर? इनके बीच में डिस्टेंस तो एल ही आएगा क्योंकि वो रेडियस है। एंड देन पोटेंशियल वी कंसीडर एट अ पॉइंट डी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 12 प्लस एल कितना हो जाएगा? 3L होगा कि नहीं होगा? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या क्लियर हुआ? थोड़ा सा पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी यानी क्या होगा? इट्स समेशन of potential at point D due to this charge, and potential being a scalar quantity, you have to consider the magnitude. So can I say K Q by distance is L? इसके लिए क्या होगा? K Q, what is distance? 3L. Students, potential at a point is a scalar quantity. You have to take the nature along with it. Signs आएगी. So it's V1 plus V potential at a point due to both the charges K Q by R. ये तुम्हारा फॉर्मूला है। What exactly potential at point D? ये देखो माइनस के क्यू बाई एल प्लस के क्यू बाई 3L। एलसीएम क्या होगा? इट विल बी 3L। दिस विल बी माइनस 3L माइनस 3 प्लस 2, सॉरी माइनस 3 प्लस 1, दैट इज माइनस 2KQ। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? पोटेंशियल एट पॉइंट डी मैंने फाइंड आउट किया। हाँ सर। ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट सी? पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू अगेन बोथ द चार्जेस। सी के लिए देखो, एक चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में, एक चार्ज राइट हैंड साइड में। फॉर्मूला क्या होगा? अगर सपोज मैं ये वाला लेता हूँ के क्यू बाय व्हाट इज द डिस्टेंस एल प्लस, इसके हिसाब से क्या होगा? के क्यू बाय एल। एक आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, एक आंसर नेगेटिव मिल रहा है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट सी? 0। हाँ स्टूडेंट्स, Also. are you getting students? So now what exactly work done? देखो work done क्या होगा? Work done to move a charge from C to D will be equal to what? Difference in potential, and इसमें से इसको subtract करो तो तुम्हारा आंसर ये होगा। आंसर तुम्हें नेगेटिव में आना चाहिए। दी पता चला? नेगेटिव में आना चाहिए। नेगेटिव में सिर्फ हाँ ऑप्शन सर। दिया है, नेगेटिव में सिर्फ ऑप्शन ए और डी दिया है, तुम्हारा आंसर दोनों में से होना चाहिए। तो देखो तुम्हारा आंसर देखो -2K, Ray option. यस, इनटू चार्ज। चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? अगर मैं लेता हूँ के क्यू बाय सी क्यू बाय 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स कांस्टेंट के हिसाब से हम पकड़ते हैं तो -2/3 into 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 3 2 जा क्या आ रहा है? आ रहा है 6। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन इज ए। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन? यस सर। तो क्या गड़बड़ क्या की थी यार तूने?
Can I erase this, students? 1 minute. Okay. Can I erase now? Can I erase it? Harsh? Yes, sir. Okay. So three capacitors are given to you, C1, C2, C3. Each of capacitance 2 microfarad, 4 microfarad, and 6 microfarad. Students, the question answers, find the charge on 3 capacitors connected to a 12-volt as shown. So to find out charge on each capacitor. Okay, students, charge on each capacitor. Is this clear, students? Yes, sir. Get the answer for this. ये पहला question है, students. Second question I'm giving it to you, students. Answer सुनना. This is C, this is C, this is C. I want to find out effective capacitance between point P and point Q. Solve these two questions, students.
Yes, anybody? Sir, first question is 124 into 10 to the power minus. What are you saying it? 124 into? What, sir? What is the first answer you're saying it? Sir, on each capacitor, now means 3 answer will come. Yeah, on each capacitor I wanted. sir 1/6, Sir. 1/3, 1/2 column. 1/6, 1/3. 1/2 in order. How are you getting these kind of answers? मुझे Sir, पता नहीं चल- 24 into 10 to the power minus 8, 72 into 10 to the power minus 8, and 48 into 10 to the power minus 5. Of course, students, यही है. अरे हाँ हाँ हाँ, सर मिल गया सर. क्या कर रहे हो तुम लोग? Deep, why are you doing it wrong? मुझे ये पता नहीं चल रहा है. हाँ? Students, they're telling you to find out the charge in this case. So how do you go about with this? Absolutely correct, Jay. Okay, you got to see it. हाँ, तो कैसे करोगे बताओ? How are all three are connected in series? Yes, sir. How are all three are connected? C1, C2 and C3 Sir, parallel. parallel. तो उनका इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा? सेम ही होगा ना सबके बीच में. आया ना? हाँ. तो ये था क्या क्वेश्चन? It was nothing. It's Q is equal to what? This Q1 is equal to what? C1 into V. Q2 is equal to C2 into V. Q3 is equal to C3 into V. That's all. C1 कितना दिया? It's 2. 2 into 12, that is 24 microcoulomb. This is 4 into 12. 12 fours are 48 microcoulomb. Agree, students? Yes. And now if in case if I happen to go for 6-1, what exactly will be? It's 6 into 12, 72 microcoulomb. Agreed? Yes. अच्छा, मैंने अगर पूछा what is the net charge, तो क्या बोलोगे? What is the net charge? So can I say you can add all of them? Yes. तो क्या आंसर आएगा? $144, yes or no? Yes. Students, अगर मैं सबको ऐड कर दूं चार्ज, तो नेट चार्ज कितना होगा? 144. Can I get net charge over here also? Yes. Q is equal to what? C into V. Or all three are connected in parallel. अगर तीनों पैरेलल में है तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? इसे सबको ऐड करना है. 6 + 4 10, 10 + 2 12. 12 voltage is also 12. What's the answer? 144. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Okay. Now can you find out the effective capacitance for this one? Yes. Find out. Over here, effective capacitance between point P and Q, students, and over here, I want effective capacitance between point A and point B. Each is C.
Yes, students, answer for this P and Q. Sir, 2C by 3. 2C by 3. Anybody else? Anybody else? D. All of them are connected in parallel. Answer is 3C. Now see how to think in this manner. ध्यान से सुनिए students. Please pay attention. कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में कैसे पता चलेगा? मैंने पूछा बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q. तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट P जो मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, मैं अज्यूम करूंगा कि पॉइंट P यहाँ पे मेरा, एग्रीड? ये जो पॉइंट Q मैंने यहाँ पे दिया है उसको मैं अज्यूम करूंगा कि पॉइंट Q यहाँ पे, एग्रीड? अभी लेट अस अज्यूम कि P मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल है, Q मेरा नेगेटिव पोटेंशियल है. इसको और एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट X ले लेता हूँ और ये पॉइंट को मैं Y ले लेता हूँ. Now मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, if in case if I say the capacitor is connected point P is to positive this is, तो कहने से ये होगा मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये नेगेटिव प्लेट होगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Are you getting it? Now if in Yes. case if I happen to get some, can I say in comparison to point P what is point X will be? Is point X and point Q, the answer सुनना students, is point X and point Q are they same potential? हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट है कॉपर वायर हाँ, से, sir. तो ये कौन सा पोटेंशियल होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ. तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव. ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अभी देखो, व्हाट अबाउट पॉइंट P एंड पॉइंट Y? पॉइंट P एंड पॉइंट Y, आर दे एट पॉजिटिव पोटेंशियल? एग्रीड? Yes. the charge induced over here will be positive and this will be negative. ये देखो, नेगेटिव नेगेटिव पास में आया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव में आया. इसी डायग्राम को भी रीअरेंज करो स्टूडेंट्स. एवरीबॉडी ध्यान से सुनना हाउ टू रीअरेंज. यानी मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो पॉइंट देखो, पॉइंट P यहाँ पे था, अभी ये जो पॉइंट Y है ना स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, ये जो पॉइंट Y है, मैंने पॉइंट Y वैसे ही रखा है. मैंने कहा कि पॉइंट P को मर्ज कर दिया विद पॉइंट Y. यानी अगर मैंने मर्ज कर दिया तो देखो ये कैपेसिटर तो है. ओके, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन. सेकंड वन का कैपेसिटेंस देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला उसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. क्या ये क्लियर है? और ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव एंड है फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाला है, उसका किससे कनेक्ट हो रहा है सर? उसका ये नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट हो रहा है, दैट इज X. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखो, पॉइंट P और पॉइंट Y को मैंने मर्ज कर दिया, तो ये जो है कैपेसिटर वो उसके ऊपर आ गया, तो ये दोनों पैरेलल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, X तुम्हारा नेगेटिव है. अभी देखो Q को मर्ज कर दो X से, पॉइंट Q को मर्ज कर दो X से, दे आर एट सेम पोटेंशियल. तो देखो जैसे मैंने इसको मर्ज किया तो देखो मेरा 3 वाला कैपेसिटर कैसे अलाइन होगा? हाँ सर, 3 वाला इसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉजिटिव वहां पे आ जाएगा. अभी देखो ये थर्ड वाला, हाउ आर ऑल थ्री ईच ऑफ कैपेसिटर, हाउ आर दे कनेक्टेड इन? ट्विंस है कनेक्टेड पैरेलल. तो व्हाट्स माय फाइनल आंसर? 3C हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Effective capacitance between point A and B, each is C. This is slightly trickier to calculate.
Yes, anyone? Can anyone tell me how to go about, students? मुझे बताओ. How are these three are considered to be connected? तो पहले 3 सीरीज में निकालेंगे फिर पैरेलल फिर सीरीज फिर पैरेलल. तो ये सीरीज में है, ये सीरीज में उसके पैरेलल. तो सीरीज में आंसर क्या होगा तुम्हारा? 3/c. ओके, यानी 1/c 1/c 3/c, लेकिन c/3 होगा ना रेसिप्रोकल. हाँ. C effective will be equal to 1/c plus 1/c plus 1/c यानी 3/c. तो इफेक्टिव क्या होगा? c/3. ये c/3 और c पैरेलल में होगा, तो c/3 plus c. What's my answer? 4c/3. Agreed? Yes. यानी ये पूरा ब्लॉक निकल जाएगा. फिर ये 4c/3 students is now with this c and this c. Agreed? Yes. So now in this case, what exactly I'll consider? वापस सीरीज में होगा, and then finally you land up over here. So can I say you have to just start solving one block, second block, third block, and so on? क्या ये clear हुआ, students? Yes. Will you be able to crack such kind of questions if they're asking you, students? Yes, sir. Okay. Now suppose if I change. If I slightly change the diagram, students, then how exactly your answer will vary? That is what I want to know about it, students. Okay. Now suppose if in case if I happen to give you student, listen carefully. Point A is given over here. Point B is over here, students. Listen carefully, students. Okay. I've given you one capacitor of 1 microfarad. Okay. Then further, I've given this one also by 1 microfarad, students. Again, this is 1 microfarad. This is also 1 microfarad. Listen carefully, students. Okay. And like that, 1 microfarad. To infinity. Question clear, students? 1 microfarad, 1 microfarad, 1 microfarad, 1. My question is find out the effective capacitance between point A and B. तो कैसे करोगे? Okay, students, can I tell you how to go about with such kind of questions? Students? Students, can I tell you this? 1 minute. Arey, wow, very good. Very good. This is Harsh. Harsh is roaring. Deep, Harsh solve कर रहा है. Come on, Jai Sharma. Raj, what are you doing? Today Norman is not there.
Okay, students, now listen carefully. Listen carefully. Students, how to go about with this? Students, जब भी ऐसे के टाइप के क्वेश्चंस आए ना, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, it will have certain errors आएगा. लेकिन your answer will be to the options matching very clearly in that case. And most of the time जब तुम इसको solve कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो तुम्हें quadratic equation मिल सकता है. ना ध्यान से सुना स्टूडेंट्स. सपोज अगर मैं इन्फिनिटी से सॉल्व करते आता हूँ, लेट अस अज्यूम, जैसे मैंने अभी इसके प्रीवियस वाला क्या किया था, मैंने एक ब्लॉक दिया था, दो ब्लॉक दिया था, शायद एक, दो या तीन ब्लॉक दिए होंगे. तो हमने क्या किया था, पहले राइट हैंड साइड ब्लॉक को पूरा सॉल्व किया, फिर वो सेकंड ब्लॉक पे आए, उसको सॉल्व किया, फिर फर्स्ट ब्लॉक पे आए थे. वैसे वैसे यानी वी वेंट टू राइट टू लेफ्ट, सॉल्व करते करते हम आंसर लेके आए थे. लेकिन वहां पे तो फाइनाइट वैल्यूज थी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्या सुन रहे हो? आर यू ऑल गेटिंग इट? व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? Yes. तो पहले केस में तो फाइनाइट वैल्यू से तुम्हें आंसर मिल रहा था, लेकिन अभी ये इंफिनिटी पे है. तो स्टूडेंट्स जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट्स, तो व्हाट एग्जैक्टली यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू डू कि तुम इंफिनिटी से सॉल्व करते आए हो, सॉल्व करते हो, और तुम यहां तक पहुंचे हो, और ये जो तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, वो है सी. लेट अस सी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज सी. वो पकड़ के चलो. ये एक assumption है. अगर इसको मैंने सी लेके पकड़ा तो मेरा ये पूरा इरेज कर देता हूं मैं. ये पूरा मेरा सॉल्व होते हुए ये क्या आ गया, ये सी बन गया मेरा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स अभी? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर. अभी 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 तुम क्या करोगे, ये ब्लॉक को सॉल्व करो, ये ब्लॉक को सॉल्व करो. हाउ इज दिस टू आर कनेक्टेड इन 1 एंड सी? हाउ आर दे कनेक्टेड इन सीरीज? तो 1 अपॉन सी इफेक्टिव क्या होगा, 1 by 1 plus 1 by c. एग्रीड? तो एलसीएम क्या होगा तुम्हारा सी, तो कहने से सी प्लस 1. तो व्हाट एग्जैक्टली सी इफेक्टिव, सी अपॉन सी प्लस 1. इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, तो वो आंसर क्या है, सी अपॉन सी प्लस 1. हाउ इज सी अपॉन सी प्लस 1 एंड दिस 1 माइक्रोफैरेड? ये कैसे कनेक्ट है, ये कैसे कनेक्ट है? Parallel. पैरेलल में. तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली माय आंसर फॉर सी इफेक्टिव? आंसर फॉर सी इफेक्टिव क्या होगा सर, सी अपॉन सी प्लस 1 Plus 1. plus 1. So now what is my answer will be? So my answer for C effective will be equal to what? Sir LCM C plus 1 होगा, और ये C है plus C plus 1, ये कितना होगा 2C plus 1 upon C plus 1. क्या ये क्लियर हुआ? Yes. Now this C effective, ये जो C effective वो यहाँ पे आ गया, यानी अभी ये ध्यान से अभी मैं इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये पूरा इरेज हो जाएगा. ये C effective फर्स्ट केस में था, ये सी इफेक्टिव सेकंड केस में है, तो यहाँ पे मेरा सी इफेक्टिव डबल डैश हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे. हाउ इज दिस एंड दिस इज कनेक्टेड इन Series. सीरीज में? तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, 1 अपॉन सी C इफेक्टिव, plus 1 upon 2 plus 1 अपॉन 1. 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन C plus सी 1 upon 2. अपॉन, तो ये 2c प्लस 1 ऊपर चला जाएगा. एग्रीड? आया ना C plus 1 ऊपर रहेगा ना. मेरे भाई? 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन सी इफेक्टिव ना, ये दोनों सीरीज में है ना, तो 1 अपॉन सी इफेक्टिव. Oh, sorry. Absolutely correct. तो ये 2c plus 1 होगा और c plus 1 ऊपर आएगा. वेरी गुड. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ. अभी इसको सॉल्व करो. ये एलसीएम क्या होगा, 2c plus 1, यहाँ पे डाल दो 2c plus 1, 2c plus 1 plus c plus 1, तो कितना होगा 3c plus 3, क्या सॉरी 3c plus 2. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ. What was the c effective when we came from infinity? C. 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 इसको भी अभी तुम इसका रेसिप्रोकल ले लो. What is C effective? Let us take this as C. Students ये ध्यान में रखना, जब भी तुम इंफिनिटी से आते रहते हो, तो जो तुमने जहां तक सॉल्व किया है और तुम एंड तक सिर्फ हार्डली फर्स्ट ब्लॉक तक पहुंचे हो, 1.5 ब्लॉक ही बचा था. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इंफिनिटी से तुम आए हो, एक रीजन पे पहुंचे हो, एक पॉइंट पे पहुंचे हो, और वहां से सिर्फ 1.5 ब्लॉक बचा है. तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, इंफिनिटी से तुम जहां तक आते हो वहां का आंसर और 1.5 जब तुम सॉल्व करोगे उसका आंसर, is there a large difference between the two answers?
क्या क्या तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा? नो, द डिफरेंस विल नॉट बी दैट मच लार्ज। अगर मैं इंफिनिटी से एक पॉइंट पे सी पे लेके आता हूँ, फिर मैंने सिर्फ 1.5 ब्लॉक सॉल्व किया, तो उसका भी मैं अज्यूम करूंगा कि उसका भी इफेक्टिव क्या होगा, सी होगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। नाउ कैन आई सॉल्व एंड गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? देखो क्या आएगा, 3c इंटू सी क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू 2c प्लस 1 भी कंसिडर, है ना? 3c square plus 2c is equal to 2c plus 1. 2c will get cancelled, students. So 3c square is equal to 1. So what exactly c square is equal to 1 by 3. So what exactly the capacitance we consider is 1 by root. क्या ये clear हुआ students? Yes. That's your effective capacitance. students समझ में आया ये अभी कैसे करते हैं इनफाइनाइट वाले? Yes. ये जे के क्वेश्चन है, जे एडवांस के भी क्वेश्चन। अगर सपोज मैं और एक एडिशनल यहाँ पे डाल दूं तो भी कुछ फर्क नहीं गिरता स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं गिरेगा। मैंने 2 डाले हैं, एक और एक यहाँ पे हो सकता है थ्रो। Is this clear to all of you? Yes. Okay. Should I erase it now, students? No sir. I will. हर्ष समझ में आया हर्ष? हाँ सर। And you Deep? Yes, sir. Kush, Parth, Priya, Rishabh, Riya, Shaili, Shania, Shreya, Siddharth. Who's this damn handsome? Just Joshi. Just Joshi, you're so handsome. एकदम स्पेक्स वगैरह पहन के, गॉगल्स वगैरह पहन के। फिनिश करो अभी मैं। Sir 1 minute last. ओके फाइन। स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर रेजिस्टेंस में हो गया, इनफाइनाइट वाले। तो ये ही पैटर्न, एग्जैक्टली वही पैटर्न करो। अगर मैंने रेजिस्टर्स दिया ना, शांति से तुम क्या करो, अगर इनफाइनाइट से है ना तो इनफाइनाइट को तुम एक आर पकड़ लो रेजिस्टेंस, और आजू बाजू के देखो सीरीज है, पैरेलल है, उसको सिर्फ एक ब्लॉक, 1.5 ब्लॉक तक तुम पीछे जाओ बस, उतना तक वो अज्यूम करो, और फिर एक ब्लॉक और वो फाइनल सॉल्व कर दो बस, और उसको भी इफेक्टिव आर ले लो। यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा तुम्हें स्क्वायर में आएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन। Done sir. ओके ओके, सो इट्स नेक्स्ट वन। दिस इज 12 वोल्ट, 8 माइक्रोफैरड,
4 microfarad, and again 4 microfarad. Students, the question asked is, what is the charge? What is the charge flowing through 4 microfarad? That's the first question. Students, what is the charge flowing through 4 microfarad? That's the first question. Second question. This is point A, this is point B. Okay. This is 4 microfarad. This is 6 microfarad. This is again 4 microfarad. This is 6 microfarad. Since my question is to find out effective capacitance. Easy मत समझना, थोड़ा ध्यान से और सोच समझ के करना. सी इफेक्टिव. ये कौन सा वाला था जो अभी इसके पहले वाला में बोला ना, 3 दिए थे, सर्किट को ज्वाइन किया था डायरेक्ट वायर से, तो मेरा पूरा इंटरचेंज हो गया और तीनों पैरेलल में आ गए थे. वैसे टाइप का थॉट प्रोसेस होगा जिसका सी इफेक्टिव निकालना. सो सी इफेक्टिव बिटवीन point A and point B. Friends, are the two questions clear? Find out C. ऊपर वाले में दोनों 4 माइक्रोफैराड है. हाँ, ये दोनों 4 माइक्रो. I want charge through 4 microfarad. ये easy है फिर भी comparatively. Yes, anybody?
Yes, come on, answer. Deep, what is the answer for this one? Charge flowing through 4 microfarad. Can you give me the answer? Yes, Chahana Walia. Chahana Walia, can you answer? Jai Sharma, can you answer? Sir, is it 72? Who's this answering? Sir, Josh, Deep, you 7. who's answering? Sir, Deep. Deep, हाँ वो क्या बोल रहे हो? What is the answer? Sir, 96 micro. तो क्या कर रहा है दीप? इतना इतना गलत आंसर क्यों दे रहा है? मुझे ये पता नहीं चल रहा है. हाँ, दीप मुझे ये पता, ये 4 और ये 4 कैसे कनेक्टेड है? जल्दी से. Sir, parallel. पैरेलल, तो इसका आंसर कितना होगा? 8. 8. ओके दीप, Yes, sir. वो 8 और ये 8 कैसे कनेक्टेड है? Series. तो उसका आंसर कितना होगा? 4. 4. तो कैपेसिटेंस कितना हुआ? टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ? 4. हाँ, sir. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12. Q क्या होगा? C into V. तो Q कितना होगा? 48. 48. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ, sir. Yani, what is the net charge flowing? What is the net charge flowing through the circuit? 48 mic. 48 microcoulomb. Just can you get the potential difference across 8? Students, मुझे अगर इसका चार्ज चाहिए तो मुझे किसी भी हाल में इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना. तुमने चार्ज फाइंड आउट कर दिया. तो नाउ कैन आई फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली फॉर दिस? अरे हाँ, 48 फ्लो, तो ये तो सीरीज में, तो ये तो फ्लो होगा पूरा. सो Q इज इक्वल टू C into V. ये C कितना है? हाँ सर 8 है पोटेंशियल डिफरेंस. सो 8 6 है 48, तो ये 6 वोल्ट होगा. यदि 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट ये 8 माइक्रोफैराड पे जा रहा है, तो इन दोनों के लिए कितना वोल्ट होगा? बाकी का 6 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. क्या था ये? क्या रॉकेट साइंस नहीं था? फिर समझ में आ रहा है. मैंने चार्ज निकाला और चार्ज यहाँ से सेम जा रहा है. यहाँ पे आने के बाद में चार्ज स्प्लिट होगा ना, क्योंकि पैरेलल है. लेकिन यहाँ पे तो चार्ज सेम था, तो मैंने वोल्टेज निकाल दिया. 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट ये ले लेता है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? 6 वोल्ट ही होगा ना. हाँ सर. Now how are these two are connected? Parallel, potential difference remains the same. मैंने पूछा चार्ज, तो फॉर्मूला क्या होगा? Q is equal to C into V. कैपेसिटेंस क्या है? हाँ सर 4 है. वोल्टेज कितना है? 6. What's my answer? 24 microcoulomb. Friends, is this clear? Jai 24. दीप, क्या क्लियर हुआ? दीप, पूछ रहा हूं मैं. Are you getting it? बीच को कैसे सॉल्व करोगे? बताओ. I'm asking you only C effective, not between point A and B. Yes, friends, only the word C effective. Find out the effective capacitance of the given circuit. Effective capacitance, not point A and B. Yes, friends. Point A and B आएगा ही नहीं. Effective capacitance. तो कैसे करोगे?
Yes, anybody? Yes, can you give me the answer for this, anyone? तो एक सिंपल कंसेप्ट है कि जब भी तुम चार्जेस को देखते हो स्टूडेंट्स, इफ इन केस अगर मैं अगर कोई पोटेंशियल पकड़ता हूँ, एब्सोल्युटली करेक्ट हर्ष, कैसे आया? बोलो कैसे आया? पहले दोनों पैरेलल का निकाला। हाँ, ये दोनों पैरेलल है, ये इफेक्ट ये भी क्या होगा? हाँ सर, उसके बाद में सीरीज में होगा सर, वो हम लोग। यस स्टूडेंट्स, ये दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर सोचो ना कि चार्ज अगर आता है कहाँ पे, जंक्शन पे स्प्लिट होता है, जहां पे स्प्लिट हुआ उसका मतलब पैरेलल हुआ स्टूडेंट्स। भले तुम चार्ज यहाँ से ले लो या चार्ज यहाँ से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे भी वही होगा ना, पैरेलल। एंड सी ये पॉइंट स्टूडेंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, आर दे एट सेम पोटेंशियल? यस, यानी इसी सर्किट डायग्राम को अगर मुझे बताना है, सो दे आर बीइंग कंसीडर्ड टू गेट सेम पोटेंशियल भी कंसीडर। लेकिन यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखना, यहाँ से चार्ज इस तरफ और यहाँ से चार्ज इस तरफ पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, यानी अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा चार्ज विल बी कंसीडर टू बी एट दिस पॉइंट, यानी दोनों एक ही पॉइंट पे आएंगे स्टूडेंट्स, वापस तुम्हारा स्प्लिट होगा। यानी आई कैन शो इट इन दिस मैनर आल्सो स्टूडेंट्स, आई कैन पुट इन दिस वे, they are same at same potential students. So now when I speak about it, 6 and 4, how are they connected in parallel? तो इसका आंसर कितना होगा? 10। ये आंसर पे कितना होगा स्टूडेंट्स? 10। How are these two are now connected in series? So 1 upon 10 plus 1 upon 10, what's my answer? 2 by 10, what's my answer? 1 by 5. So what's the effective answer? 5 microfarad. Students, is it clear? यस Erase करूं मैं? यस। Students, C1 is given to us 4 microfarad, C2 is given to us 6 microfarad. Okay, I want to find out effective, C effective. Is the question clear, students? C1, C1, C2, C2, यस सर। C2, C2.
Yes, what's the final answer? Come on, Deep. Come on, Harsh. Fast. इसका और पहला क्वेश्चन Sir, is it 10? आपको ये और पहले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ मैंने और एक सेक्शन बढ़ा दिया। हाँ सर। ओके, मैंने तो ज्यादा फर्क नहीं किया। ये पैरेलल में आएगा, ये भी पैरेलल में आएगा। इन दोनों का आंसर क्या होगा? 6 + 4 कितना होगा? 10। ये भी कितना होगा? 10। ये भी पैरेलल में आएगा, ये भी पैरेलल में आएगा, तो ये भी 10, ये भी 10। फिर क्या होगा? दोनों सीरीज में है ना? तो ये हाँ कितना सर। होगा? 5। ये भी 5 आ जाएगा। हाउ आर दीस टू आर कनेक्टेड? Parallel. व्हाट्स माय फाइनल आंसर? 10. 10 microfarad. Is this clear, students? Yes. Can I erase this? Yes. Deep, समझ में आ रहा? Deep, getting it? Deep? हाँ? Yes, sir. Okay, fine. Okay, students, now we'll go with a new topic, students, current electricity, okay? That doesn't mean that the problems of electrostatics are still over, students. Every time I'll pick up few questions all the time, students, okay? Every time I'll go Sir, on. is this 12th chapter? Pardon? Sir, this is a 12th standard first chapter. या करंट इलेक्ट्रिसिटी हम 11th और 12th दोनों साथ में करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा 11th और 12th तुम्हारा साथ में था, पूरा कराया है मैंने, एवरीथिंग। Okay. कुछ 12th में नहीं था वो पूरा पूरा। इट्स बिकॉज व्हेन यू गो विद रिस्पेक्ट टू, इफ यू गो फॉर योर करंट आल्सो, इट्स नॉट ओनली आई एम डूइंग 12th, आई एम डूइंग विद रिस्पेक्ट टू योर 11th आल्सो। यानी तुम्हारा जेई या नीट के हिसाब से भी तुम्हारा वो पोर्शन इंक्लूड है। आई एम पिकिंग अप फ्रॉम देयर। ऐसे नहीं कि सिर्फ 12th का अगर होता तो डायरेक्टली किरचॉफ लॉ से शुरू करूंगा मैं। Agreed, I'm not doing that. Okay. Okay, sir. Now, when you speak about students for current electricity students, what exactly mean by the word current, students? The word current stands for students motion. Okay. Current का मतलब Motion क्या of है? electron. Yes, motion. Electricity का मतलब electric charge. A branch of physics students which deals with motion of electric charge is called current electricity. Students, अगर यही current को मैं निकाल के अगर मैं यहाँ पे word static डालता तो क्या होता? Rest. क्या Charges होता? at rest. Yes, that stationary charge हो जाता students. So ये है motion of electric charge we consider. Is that clear? So the word current electricity is what? That is a charge in motion will certainly have some energy associated with it. और इसको हम बोलते हैं kinetic energy. Friends, the kinetic energy associated with the moving charge is called current electricity. ये ध्यान में रखें, कोई भी charge motion में होगा तो of course उसको current होगा. Now to understand current electricity, students, let us understand the charge particle, which already I told you in electrostatics also, students. We have electron, तो electron को E0 - 1 हम लिखते हैं, प्रोटॉन को P1 + 1 I'll consider. तो हम ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन is what? Negatively charged. Proton we consider as positively charged. It is said that the mass of an electron and mass of proton. Friends, can you tell me what is mass of an electron? It's 1/136 times mass of a proton we consider. And the answer is 9.1 × 10⁻³ kilograms. ये ध्यान में रखना. Mass of a proton, students, if I were to consider, it's nearly equal to 1 AMU, जिसको बोलते हैं 1 Dalton. Students, we consider that is equal to 1 Dalton, and that is equal to 1.667
or 6 into 10 raised to minus 37 kilograms, students. Sorry, minus 27 kilograms, which is greater. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. 1.8 into 10 to the power of minus 27 kilogram mass of a proton. Students, अगर मैं charge के बारे में बात करता हूँ तो what exactly? Students, charge on an electron and charge on a proton, both of them are equal in magnitude. Magnitude क्या होगा? So 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. But they are opposite in nature. Proton को positive लेता हूँ, electron को negative लेता हूँ, students. ये है charge उनके ऊपर, ये ध्यान में रखना. Now, when you speak about current electricity, students, ध्यान से सुनना, current किसकी वजह से होता है? तो your answer should be, sir, current is due to flow of field. अभी ध्यान से सुनना, इसके लिए एक छोटा सा concept of electrostatics पकड़ना पड़ेगा. Please listen carefully, students. Suppose अगर मैंने एक unit positive charge लिया है, जो मैं इसको बोलूंगा source. This is my source. Every source, students, every source will have a certain region around it. Agreed? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? सपोज अगर मैंने चार्ज को इन्फिनिट में लिया है और इन्फिनिट से मैं उस चार्ज को आई एम ब्रिंगिंग इट एट पॉइंट ए, मींस आई एम मेकिंग द चार्ज दिस यूनिट पॉजिटिव. जैसा अगर मैंने चार्ज लिया है और ये मेरा चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और उसको मैंने पॉइंट ए पे लिया, स्टूडेंट्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए. तो क्या स्टूडेंट्स, हैव आई डन सम वर्क टू मूव फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट ए? हाँ या ना? Yes, sir. Plus Q, of course, so work is done. So work is done to move a charge from infinite to point A. Agreed? This work done gets stored in the charge in the form of which energy? Potential energy. तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे होगा potential at point A होगा. अगर मैं इसी चार्ज को मैं पॉइंट B पे लेके आता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, तो वो क्या होगा? वर्क डन टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू B. तो वो क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट B वी कैन कंसीडर. Since potential at infinity is always zero, potential of infinity is always zero. But when I bring the positive charge within the field of the other, of course, there is some work done. So can I say, can I say work done to move the charge from infinity to B is greater than the work done to move the same positive charge from infinity to A? उसका मतलब क्या है? से therefore potential at point B is greater than potential at point A. तो ये क्या हो गया? Difference in potential, जिसको हम नाम देते हैं electric potential difference. ये है तुम्हारा electric potential difference. फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है? ध्यान से सुना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज गोइंग इन दिस वे. ये किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. It's directed always outwards, we consider. Electric field direction. Agreed? And the charges in motion we consider in this case. Are you getting it? Now Yes, suppose अगर मैंने by chance charge B पे है students, अभी charge B पे है, तो देखो इसका distance from B is RB. यहाँ से इसका distance कितना होगा? बोलो से RA. अगर सपोज बाय चांस मैंने चार्ज को छोड़ दिया तो होगा क्या? तो क्या होगा सर? चार्ज मूव करना शुरू करेगा, यानी चार्ज विल बी इन मोशन एंड इट इज नाउ मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? इट्स मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. पोटेंशियल पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल. यानी कैन आई से स्टूडेंट्स, कैन आई से कि यहाँ पे पॉइंट बी था, यहाँ पे पॉइंट ए था, यानी इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस इन पोटेंशियल था. VB was greater than BA. Was there an electric field? Yes, this was a positive potential, I'll consider. So there's an electric field we consider which is directed in this way. Did the positive charge was also in motion? Yes. Such a motion of electric charge due to the external electric field, students, results in current. तो मुझे ये बताओ students, ध्यान से सुनना, motion of electric charge with respect to time is called current. ये जो करंट है वो किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है सर? ये करंट जो है ये हुआ है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल.
ये डिफरेंस इन पोटेंशियल का कॉज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. कैन आई से E is equal to dV by dr? Agreed? Agreed. And this potential difference will certainly cause some current to flow. क्या ये clear हुआ students? Is this clear to all of you all? Yes, sir. यानी कॉज क्या है? करंट के लिए, करंट यानी चार्ज को मोशन में लाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? डिफरेंस इन पोटेंशियल, दैट मींस अ बैटरी, अ सोर्स. दैट इज व्हाट वी स्पीक अबाउट फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी. कैन आई erase this functions? No, sir. Just can I erase? Sir, 1 minute. Writing. Okay. Done, sir. Okay. Okay, students. Now, once when you consider what exactly consider is electric potential difference is the cause and electric current. Electric potential difference V is a cause and electric current is the effect. ये ध्यान रखना. Agreed?
Now when you move further with the students, ये जो है motion of charge की वजह से. So now let us understand what exactly the motion and how does exactly the motion is considered to be. The students इसको समझने के लिए let us consider about a copper wire. Students, a simple conducting wire I'll consider. If in case if I happen to give you a simple conducting wire, which is copper wire students is a good conductor of electricity students. Okay, ये एक मेटालिक कंडक्टर है जो यूज होता है फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में. So ये कॉपर वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना स्टूडेंट्स ये सारे रैंडम मोशन. तो इलेक्ट्रॉन का अगर किसी ने पूछा तो मोशन क्या है तो बोलेगा सर ये रैंडम मोशन. There is a random motion of electrons. यानी अंदर there are lots of electrons. students बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. कॉपर वायर के अंदर एटम्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन ये सारे रैंडम है. तो तुरंत कोई स्टूडेंट बोलेगा सर अगर इलेक्ट्रॉन्स है और वो रैंडमली मूव हो रहा है तो आपने तो इसके पहले एक स्टेटमेंट बोला था अगले फ्रेम में अगले बोर्ड के अंदर लिखा हुआ था कि चार्ज जब भी फ्लो होता है तो वो करंट होता है. तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो है ना, यहाँ पे भी तो करंट है कि नहीं है. तो फिर सर मुझे करंट के लिए मुझे बैटरी की जरूरत क्या है. एक सिंपल कॉपर वायर मेरे घर के अंदर मैं कॉपर वायर में लूँ तो उसके अंदर करंट होना चाहिए क्योंकि आप बोलो कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में देखो रैंडमली मूव हो रहा है. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स मोशन ऑफ चार्ज अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूंगा जब वो मूव होगा तो एक इट विल प्रोड्यूस अ करंट. यानी देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो वो भी तो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. व्हाई नॉट. लेकिन फिर भी द नेट करंट over here is equal to 0. क्यों? Why is it so? The reason is why ये तुम्हारा जो पोर्शन ना एवरी कॉपर वायर का ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया. सिंस ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टूडेंट्स. अभी मैंने करंट को 0 क्यों बोला? रीजन क्या है? यानी as many electrons students as many electrons coming out through the cross section on the left hand side, that many electrons are coming out from the right hand side. Students जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट से भी बाहर आएंगे. मोशन क्या है इलेक्ट्रॉन्स का? रैंडम है ना. लेकिन जब भी हम कंसीडर करते हैं व्हाट एग्जैक्टली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through the given cross section on either side is same. Therefore, the net current inside the conductor is always equal to 0. तभी जाके कॉपर वायर अगर तुम कनेक्ट नहीं करते हो बैटरी से वो कंडक्ट नहीं करता. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? Sir, can you explain again? I said it कि अगर तुम कॉपर वायर देते हो तो कॉपर वायर is made up of copper atoms. It's a metallic. In metal के अंदर you know how exactly the atoms are. They held very closely and compactly. तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. स्टूडेंट्स ये भी मैं बता दूं कि जब भी तुम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ते हो ना स्टूडेंट्स, है ना, तो ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट होता है ना. तो एनर्जी लेवल में जो आउटरमोस्ट शेल होते हैं तो वहां पे भी तुम्हारे 2 बैंड्स होते हैं, है ना स्टूडेंट्स. Are you getting it? एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड. Are you getting it? तो तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? कंडक्शन बैंड में होने जरूरी है. तो ये जो कॉपर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कौन से बोलते हैं वो कौन से हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो कंडक्शन बैंड के अंदर प्रेजेंट है. एंड इन केस ऑफ मेटल्स हाउ एग्जैक्टली द टू बैंड्स, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है? वो ओवरलैपिंग होंगे स्टूडेंट्स क्योंकि ये मेटेलिक कंडक्टर है. उनके बीच में एनर्जी गैप इज नॉट एग्जिस्टिंग. एनर्जी गैप इज नियरली इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे रैंडमली मूव हो रहे हैं. तो जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रैंडम मोशन है यानी चार्ज मोशन में है तो करंट होना चाहिए. तो अगर मैं कोई भी कॉपर वायर लूँ स्टूडेंट्स, कोई भी कॉपर वायर लूँ और उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट ही नहीं किया तो उसके अंदर करंट होना चाहिए. मुझे शॉक लगना चाहिए अगर मैं हाथ पे पकड़ूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. That means we say that the net current inside is 0. What is the reason for the net current inside is 0? The reason is that as many electrons coming out from the right hand side, that many electrons is coming out from the left hand side we consider. So the current
net will be 0 through a given cross section we consider. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Now, what is the reason ये इलेक्ट्रॉन करंट कैसे देता है? How is it? तो तुम क्या करोगे सर? उसके लिए हमें सोर्स चाहिए, यानी तुम्हें एक बैटरी चाहिए, एक सोर्स चाहिए. अभी सपोज बाय चांस if in case if I happen to go for a source of electricity, since I'm taking a source of electricity, this is positive potential, this is negative potential, and now suppose if I connect the same copper wire across this particular cell, ये है होगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया ये एंड, और इसको ये एंड कर, तो ये कौन सा पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल. ये कौन सा एंड होगा? नेगेटिव. स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक सेल की वजह से है, जो तुम्हारा सोर्स है, उससे हुआ क्या सर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, जो हाइपोथेटिकल स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट्स ये मेटालिक कंडक्टर है. प्लीज स्टूडेंट्स डू कीप इन माइंड, दिस इज मेटालिक कंडक्टर. व्हाट हैव यू लर्नड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? डू इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर? Now students, do you find out electric field intensity inside the conductor? No, sir. Not at all. It's zero we consider. Electric field is always outside, we consider superficial. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट किया है? सेल ने क्रिएट किया है. यानी ये सेल की वजह से there is a field created across it. एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल हुआ. अभी इससे क्या हुआ? मतलब ये फील्ड की वजह से क्या हुआ ना, जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम जा रहा था, अभी देखो वो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है. ध्यान से देखना स्टूडेंट. एक तरफ जाए. हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम जा रहा था, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ जा रही है, यही इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट देखो अपना पाथ चेंज कर रहा है. इट्स गोइंग टू गो एग्जैक्टली एंटी पैरेलल टू व्हाट? टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का मोशन गवर्न करता है. स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन का मोशन को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है. अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो वापस इलेक्ट्रॉन्स रैंडम में जाएंगे. जितने इलेक्ट्रॉन, सपोज अगर बोलो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. नेट करंट विल बी 0. यहाँ पे रैंडम ऑल ऑफ देम आर नाउ स्टार्ट, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं. इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट. दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट. यानी do you find out any electrons coming out from this side? No, all the electrons are coming out from one of the cross section areas, students, not from the other. They are entering from one end and they're coming out from the other end, students. As many electrons entering, that many coming out from the other end. ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे आना, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, VD. Is this clear, students? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ड्रिफ्ट स्पीड एक बार बताओ ना. ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ? ड्रिफ्ट का मतलब क्या? सडन चेंज इन डायरेक्शन. सिंस अगर कार अगर सपोज तुम हाई स्पीड पे लेते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या अगर तुम डायरेक्शन चेंज करोगे तो उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है. तो ये ड्रिफ्ट क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को एक ड्रिफ्ट मिला है. ये किसकी वजह से मिला है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. जाना था इस तरफ, गया ऐसे, तो ये जो मोशन हुआ ना, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट. And that drift speed for each electron is very small. It's almost in millimeter per second, students. लेकिन collectively तुम्हारा current ज़्यादा होगा because there are so many electrons which are drifting at one time. Is this clear, students? Yes, sir. Yes. Okay. So we'll complete up till here only, students. Next lecture we'll be continuing further, students. Okay. Okay, sir. Next lecture, but still I will be raising questions to you all onto electrostatics. Okay, so please do remember